Hello students, how are you? I hope you all are fine. Third block test खत्म हो गए है ना, and you all are doing very well. Now come to the fourth block test syllabus. So the first chapter of fourth block is division. Okay. So before starting a division, take a small review of previous class. ठीक है? In previous class, we completed 3 basic operation. Number 1, addition, है ना, addition हमने complete किया. In addition, what we have to do? We have just add. Suppose there are few red apples, few green apples, and if you want to find out the total number of apples, then what you have to do? We have add, है ना, a sign of addition is given over here. देखो ध्यान से, this is the sign of addition, and you have to add the number of apples. And then we find the answer. This is called sum or addition. Next operation is subtraction. Again, there are 5 apples, and out of 5, few apples we have cut it out. Okay? So find out the remaining apples. So which operation we have to do? कौन सा operation किया? Subtraction, है ना? Addition. Then next is subtraction. Subtract 3 apples out of 5 apples. Okay, this is a subtraction. Next operation is multiplication. We have completed this topic in third block. In multiplication, what we have to do? We solve the question using tables or using repeated addition. ठीक है? Repeated addition. Here few balls are there. We make a group of ball. In each group there are 2 balls, and we find the number of balls. कैसे find out किया हमने? By adding the groups in each group. 2 balls in each group, so we add 2 plus 2 plus 2 5 times because there are 5 groups. Or we multiply 2 into 5, 10 balls. Same thing we have to use in division in some different manner. है ना? Multiplication means repeated addition, and we have to do something different which is related to multiplication. How the multiplication is used in division in some different form, let's see. Okay, so now let's start division. बच्चों, अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन 3 ऑपरेशंस को डिस्कस किया. क्यों किया? कि इससे आपके दिमाग पे थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा कि व्हाट वी हैव लर्न इन ऑल द प्रीवियस क्लासेस. ओके, सो हियर टुडे वी स्टार्ट डिवीजन एंड हाउ द डिवीजन इज यूजफुल इन आवर लाइफ एंड हाउ टू लर्न डिवीजन फ्रॉम आवर डेली लाइफ. लेट्स सी. फर्स्ट, यहाँ पर डिवीजन की कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं. यहाँ पर जस्ट लिखी हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब ये कैसे यूज होती हैं? लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. Before division, let's revise a small example of multiplication. हमने इसके प्रीवियस क्लास में और थर्ड ब्लॉक पे हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, एंड डिवीजन इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स सी हाउ डिवीजन इज ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्मॉल एग्जाम्पल. Let's see multiplication. Suppose there are 1, 2, 3 rows of student, and in each row there are 4 students. This is row number 1. In this row there are 4 students. 1, 2, 3, 4. There are the 4 students in row 1. Okay. In row second, again there are 4 students. In row second, again there are 4 students. 1, 2, 3 and 4. In row third there are 4 students. Okay, 1, 2, 3 and 4. It means there are 3 rows. There are 3 rows. Row 1, 2, 3 and 3 rows, and in each row there are 4 students. 1, 2, 3, 4. So how can you calculate these number of students using multiplication? Multiplication की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करते थे? 4 प्लस 4 प्लस 4, है ना? और टेबल का यूज करके कैसे आप कैलकुलेट करते हो? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा
12. It means total 12 students are there. Okay, this is the concept of multiplication. अब इसी को हम डिवीजन में करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या किया था, विद द यूजिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 ग्रुप्स. नाउ वी डूइंग द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वी आर डूइंग द रिपीटेड सबट्रैक्शन. रिपीटेड सबट्रैक्शन कैसे करेंगे? टुडे देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 students are present in the class. अब मैं 12 students को with the help of repeated subtraction 3 groups में डिवाइड कर रही हूँ. ठीक है, रिपीटेड सबट्रैक्शन यानी माइनस करना है. तो आउट ऑफ 12 आई एम सबट्रैक्टिंग फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स. 1, 2, 3, 4. मैंने 4 स्टूडेंट्स को सबट्रैक्ट किया और एक लाइन में अरेंज किया. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट? 8 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Means 12 में से 4 subtract किए, 8 are left. Again I am subtracting 8 students out of 4 students out of 8 students, making a second row. 1, 2, 3 and 4. अब 8 में से मैंने 4 subtract किए. अब कितने स्टूडेंट्स बच गए? 4. Now again I am arranging the third row for these 4 students. 1, 2, 3 and 4. तो देखो बच्चों, अभी हमने यही चीज मल्टीप्लीकेशन में सीखी थी कि ऑलरेडी हमारे पास 3 रोज थी और हमने मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से फाइंड आउट किए थे हाउ मेनी स्टूडेंट्स. अभी हमारे पास 12 स्टूडेंट्स थे एंड वी डिवाइड दिस 12 स्टूडेंट्स इन इक्वल ग्रुप्स. इन इक्वल ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स देखो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इक्वल ग्रुप. वी डिवाइड दिस स्टूडेंट्स इनटू इक्वल ग्रुप्स. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, यूजिंग रिपीटेड सबट्रैक्शन. रिपीटेड सबट्रैक्शन की हेल्प से हमने इन बच्चों को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन. इक्वल ग्रुपिंग, रिपीटेड सबट्रैक्शन, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर डिवीजन. नाउ स्टूडेंट्स, टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ डिवीजन. हियर आई मेक वन डिजाइन. एक डिजाइन बनाई है मैंने. एक सर्कल है बड़ा एंड स्मॉल सर्कल्स है. स्मॉल सर्कल पे मैंने नंबरिंग की है. सो हाउ मेनी स्मॉल सर्कल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर्कल्स आर देयर. ठीक है, यहाँ 12 सर्कल है. तो ये छोटे 12 स्मॉल सर्कल्स को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगी या इक्वल शेयर करूंगी या इनके इक्वल ग्रुप्स बनाऊंगी. कितने पार्ट्स में? ये स्क्वायर जो छोटे सर्कल है इनको इक्वली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इट मीन्स 2 कलर्स यूज करेंगे हम इक्वली. यानी एक सर्कल में 1 कलर एक कलर से करूंगी, नेक्स्ट सर्कल में दूसरे कलर से करूंगी. ठीक है, सो अब हम जब कलरिंग करेंगे तो लेट्स सी हाउ मेनी इक्वल ग्रुपिंग ऑफ 1 सर्कल. ठीक है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन अगर हम यूज करें तो 2 कलर्स यूज कर रहे हैं. 2 कलर इट मीन्स टेबल ऑफ 2. ठीक है, 2 कलर्स इट मीन्स टेबल ऑफ 2. और कितने सर्कल्स है? 12. यानी 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? कैन यू टेल मी कि 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? इट मीन्स 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो जब हमें 12 लाना है तो हम कितनी बार टेबल्स को पढ़ेंगे? स्टार्ट. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. So the students, how many times you will get 12? 2 6s are 12. So students, there are total 12 small circles और 2 colors यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 6 का क्या रोल है? लेट्स सी. Now students, here I am filling a color
और कलर देखो, जो बाहर आउटर 12 स्मॉल सर्कल्स थे उसमें मैंने 2 कलर्स किए, 2 कलर्स 12 सर्कल्स. सो इन द टेबल ऑफ 2 हाउ मेनी गेट्स वी गेट 12. अभी हमने सुना था 2 6 12. ठीक है. अब डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. कैसे? लेट्स सी. हियर 12 स्मॉल सर्कल्स आर देयर, है ना, छोटे 12 सर्कल्स थे और हमने 2 कलर्स किए हैं अलग अलग. तो हर एक कलर्स के कितने सर्कल हुए? 6 सर्कल्स. लेट्स सी. 1 2 3 4 5 6. देखो 6 मेरे पास पिंक सर्कल है एंड 1 2 3 4 5 6 कलर के मेरे पास दूसरे कलर के सर्कल्स है ना. सो इफ वी डिवाइड द 12 into 2 equal parts, you will get the 6 in each group. 2 ग्रुप्स रहेंगे, उसमें हर ग्रुप में कितने सर्कल हो गए? 6 सर्कल. दिस इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन. ठीक है. सो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा इक्वल ग्रुपिंग. 4 के बच्चों के ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिए थे. इक्वल ग्रुपिंग, ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड रिपीटेड सबट्रैक्शन. These all are the concept of division, or this is the sign of division. Okay students, so watch this video, write this definition in your copy, draw this beautiful rangoli in your copy. By making 12 circles, divide this 12 circles into 2 colorful and learn how many colors of same color circles. Okay, let's do it in your copy. Thank you.